میرے عزیز ساتھیوں، آج 3 ٹیموں کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی۔ آپ کو جو ٹیم اچھی لگی اس کو سپورٹ کریں۔ ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی لکھ کر ہمیں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ صدر ذی وقار، صاحب عز و جل، مالک کرسی بلند و پایا، آپ کے آنے سے روشن ہو گیا سارا چمن، آپ کے چہرائے پر نور سے شرمائے چاند، دیکھ لو روشنیاں ساری پڑ جاتی ہیں مان، آپ کے آنے سے اس چمن میں خوشبو آئے، اور آپ کو دیکھتے ہی مجھے اس شعر کی یاد آئے۔ اتارا زمیں پہ شاید مصلحت اس کی، تجھے تو چاند بنایا تھا آسماں کے لیے۔ جناب والا، آج یہ حقیر، فقیر، پرتقصیر بندہ ناچیز جو ہدیہ آپ کی خدمت میں لایا ہے، اسے سیانوں نے کچھ یوں فرمایا ہے، 100 کام نکلتے ہیں خوشامد سے جہاں میں۔ خوشامد، واہ کیا لفظ ہے، گویا کسی نے زندگی کے سارے تجربات کو مکھن سے بنے قلم اور شہد کی روشنائی سے لکھ دیا ہو۔ کیا شیرینی ٹپکتی ہے، اس کی وضاحت کے لیے وہ الفاظ کہاں سے لاؤں، وہ انداز کہاں سے لاؤں۔ آج ایسی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں سامنے، تعریف جن کی ہو نہیں سکتی زباں سے، ہے عظیم ان کا کلام، علم کی ندیاں ہے یہ، کرتا ہوں میں انہیں جھک کر سلام، اے عظیم جج صاحبان۔ جناب والا، آج کل ہر طرف خوشامد کا دور دورہ ہے، اور جو خوشامد کرنا نہیں جانتا وہ بالکل ہی کورا ہے۔ خوشامد کے بہت سے فوائد ہیں۔ خوشامد کرنے والا بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ خوشامد کرنا ایک فن ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، خوشامد تو ایک دل کی گہرائیوں سے کی گئی عزت کا نام ہے۔ جو طلباء نمایاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جی سر کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی، تختہ سیاہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، اور جو طلباء اس سے ناواقف ہیں وہ آخر میں یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، ہم نے اقبال کا کہا مانا اور سیپلی کے ہاتھوں مرتے رہے، ہم نے اقبال کا کہا مانا اور سیپلی کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفعتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ جناب والا، آج کل ہر شخص ہی خوش آمدی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو اس بات پر غور کیجئے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو تیار ہونے کے لیے آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ہی خوش آمد کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، چشمے بد دور، کیا نور ٹپک رہا ہے۔ ذل سبحانی، شمع محفل، رونق بزم، زندہ رہنے کے لیے سبھی خوش آمد کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی، بیوی ساس کی، شاگرد استاد کی، نوکر مالک کی، مالک مالکن کی، ماتحت افسر کی، اور افسر افسر بالا کی۔ خوش آمد ایک ایسا مجرم نسخہ ہے جو انسانی عقل کو معاف کر کے اسے صحیح اور غلط سب سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو جناب والا، میرے خیال میں کامیابی کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے خوش آمد۔ چلتے چلتے صرف یہی کہوں گا، اپنے مرکز سے جو بھی دور نکل جائے گا، اپنے مرکز سے جو بھی دور نکل جائے گا، خاک ہو جائے گا، افسانوں میں ڈھل جائے گا۔ مکھن لگاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو، مکھن لگاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو، دھوپ اتنی تو نہیں کہ مکھن پگھل جائے گا۔ مکھن لگانے کا کرینہ سیکھو، مکھن لگانے کا کرینہ سیکھو، جسے لگے گا وہ پگھل جائے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید انیس حیدر ہے، میں جماعت دہم اے کا طالب علم ہوں۔ میری صدا کو روکنا تو خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا۔ خوش آمدیں گرچہ بڑی کارگر سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا۔ نئے تقاضوں کی پرواز روکنے والوں، میرے دین کی پکار
कौन रोकेगा। साहिब सदर और मोअज़्ज़िज़ सामीन, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है तो मुझे तो इस मौजू से इख्तलाफ है। हम खुशामद के मौजू पर धुआंधार तकरीरें करके इस नई नस्ल के ज़हनों में आखिर क्या डालना चाहते हैं, इनकी तरबियत किस नहज पर करना चाहते हैं। मेरे फाजिल दोस्त पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हैं। झूठी दास्तानें और खुशामदें करने का दौर कब का लग गया, जब बाकायदा हुकूमती दरबारों में इनको मुलाजिम रखा जाता और नमाज से नवाजा जाता था। अब तो मुकाबले का दौर है, कंपटीशन का शोर है, कंप्यूटर इंटरनेट का जोर है, मेरिट काबिल गौर है। हो सकता है कि माजी में कई काम खुशामद से निकलवाए जाते हों, लेकिन अब तो हर चीज़ कंप्यूटर और इंटरनेट पर आ गई है। हर किस्म की दो नंबरी खुशामदी और गलतकारी का डका छुपा रहना महाल है। खुशामदी टोले को जवाल है, दो नंबरी की किस को मजाल है, बल्कि अब तो ये एक वबाल है। हर किस्म की दो नंबरी पल में मीडिया पर आ जाती है। हाज़रीन महफिल, आप तो जानते हैं कि मीडिया वाले खुशामदी दरवाजे से आने वालों की कैसे पगड़ियाँ उछालते हैं, क्या क्या मतलब निकालते हैं, कितनी तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ताना और तशनी के वो तीर चलाते हैं जो खुशामद करने वालों को ज़हनी मरीज़ बना डालते हैं। जनाबे वाला, ज़रा गौर कीजिए, क्या दुनिया के सारे बड़े इंसान खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गज़नवी और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ खान क्या खुशामद की सीढ़ी को सहारा बनाकर बुलंदी तक पहुँचे? मेरे साथियों, मुझे कोई ऐसा नाम तो बताएं जो खुशामद का सहारा लेकर बुलंदी पर फाइज हुआ हो। मेरे ख्याल में इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, कभी नहीं। क्या आतिश नमरूद में कूद जाने वालों ने खुशामद की? क्या जलते कोयलों पर बिलाल हबशी ने खुशामद की? क्या इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खुशामदी टोले का साथ दिया? सर सैयद अहमद खान ने हिंदुओं की तरह अंग्रेज़ों की खुशामद करके मफादात वसूल क्यों ना किए? कायद आज़म जैसे मद्देआहद ने अंग्रेज़ों को नाको चने क्यों चबवाए? चलता रहा जो आबला पाई के बावजूद, चलता रहा जो आबला पाई के बावजूद, मंजिल का मुस्तहिक वही सहराए नूरिद है। सर्जिज़ी वक़ार मौजू की मवाफ़क़त में बोलने वाले एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं, मगर शायद वो ये भूल रहे हैं कि शऊर व आगही के इस ज़माने में एक 3-4 साल का बच्चा भी तारीफ़ और खुशामद में फ़र्क जानता है, अच्छा बुरा जानता है। तो एक बड़ा ओहदेदार जो पढ़ा लिखा है, पब्लिक डीलिंग करता है, लोगों के काम निपटाता है, तजुर्बा उसको उस्ताद बनाता है। जनाबे वाला, फिर वो कैसे हो सकता है? इब्नुल वक्त किस्म के लोगों से धोखा भी खाता है। जनाबे वाला, जिस तरह फिजिकल लॉज हैं, इसी तरह मोरल लॉज भी होते हैं। बददियांती और सहल अंगारी का फल कभी मीठा नहीं हो सकता, बल्कि खिलाफे फितरत है, खिलाफे मजहब है, मावराए गैरत है, मुंतहाई नफरत है, ज़वाले शोहरत है, बाइसे नाराज़ी रब है। जनाबे वाला, खुशामद पसंद ये क्यों नहीं सोचता कि एक बड़ा अफसर ऊपर भी बैठा है जिसके इंतज़ामात और मकाफ़ात में कोई कुजी, कोई सिफारिश, कोई खुशामद नहीं। आखिर में तो यही कहूँगा, लेकिन ए अज़मत इंसान के सुनहरे ख्वाबों, लेकिन ए अज़मत इंसान के सुनहरे ख्वाबों, मैं किसी तौर भी खुशामद का परिस्तार नहीं। मेरे अफ़कार का उन्वान सिर्फ मोहब्बत है, मैं तुम्हारा हूँ, लुटेरों का वफ़ादार नहीं। नाम तो सभी कमाते हैं बड़ी मेहनत से, नाम तो सभी कमाते हैं बड़ी मेहनत से, ऐसे लोगों को खुशामद से सरोकार नहीं। पिछले दरवाजे से जो छुप के चले जाते हैं, वो किसी तौर भी इज्जत के हकदार नहीं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम दनियाल रहीम है और मैं जमात हफ्तम पी का तालिब इल्म हूँ। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ साहिल लुधियानवी के उसी शेर से करूँगा जो कि आज मौज़ूए बहस है। मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। सदर आली वकार और हाज़रीन महफिल, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। इससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? और जब कपाते हुए होंठों से मजबूर माँ जवाब देती है, मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस भूख से बिलखते हुए बच्चे को देखा ना गया, तो सदर आली वकार यह कहना बजा होगा, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है,
मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज़ बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। सदर आली वक़ार, हमारे मुआशरे में एक तरफ जाली डिग्री होल्डर आला ओहदों पर फाइज हैं और दूसरी तरफ पढ़े लिखे काबिल लोग डिग्रियां हाथों में थामे रोजगार की तलाश में सड़कों की खाक छानते हैं। बेरोजगारी आम है, गुर्बत का राज है, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। इन हालात में वो क्या जाने लताफत किस चिड़िया का नाम है। जनाब सदर, हिस्से लताफत की बात तो तब की जाए जब जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई और बुढ़ापे की वजह से अपने जिस्म पर झुर्रियां लिए हुए नश्तर हस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के इवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला भूख है, मुफलिसी है। इस बूढ़े को दुनिया की रंगीनियों से क्या गर्ज। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सदर आली वक़ार, मुफलसी, तंग दस्ती और नादारी वो अफरियत है जो पूरे के पूरे मुआशरे को निगल जाते हैं। सारी लताफतें, नफासतें और खुशबख्तियाँ सिर्फ और सिर्फ तवंगरी की मरहून मिन्नत है। ज़िंदगी में हुस्न मज़ा तो तब ही आता है जब पेट में रोटी हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में, गोल जो भी चीज़ हो रोटी लगती है। शुक्रिया। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम राना है और मैं जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मेरा आज का मौजू है मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। हमने हर दौर में तज़लील सही है लेकिन हमने हर दौर में तज़लील सही है लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झीले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। जनाबे वाला, मौजू ज़ेर बहस की मुखालफत एक ऐसी खुली हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मुसलमान मुफलसी से नहीं दौलत से ज़वाल पजीर होगा। मेरा ख्याल है कि इसके बाद किसी दलील या जवाज़ की गुंजाइश हरगिज़ नहीं रहती। ताहम हस्ब मुआफ़िक़ के साथियों की तस्कीन के लिए मैं कुछ दलाइल ज़रूर पेश करूँगा। जनाब अली, गरीबों की झोंपड़ियों से लेकर शाहों के महलात तक, अंधेरी गलियों से लेकर शाहराहों तक वक्त की सदाएं और शऊर की शुआएं पुकार पुकार कर कह रही हैं कि नहीं, ऐसी मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटाती नहीं बल्कि अपनी सादगी और हुस्न से इस धरती को जला बख्शती है। मुफलिस के दिल में तो खुदा बसता है, खुदा रहता है, खुदा सुनता है। मुफलिसी को बदसूरती करार देना सूरज को उंगली के पीछे छुपाने के मुतरादिफ है। गरीब तो दिलो जान से उमराह की खिदमत करते हैं, इनकी तिजोरियां भरते हैं और अपने लहू से इनके घरों के चिराग जलाते हैं। जनाबे वाला, अमीरी और अमारत तो एक ऐसा नशा है जो बंदे को ना सिर्फ बंदे बल्कि अपने रब से भी दूर कर देता है। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली इन उमरा की कोठियों के अंदर मुक़य्यद रूहें मोहब्बत का पैकर नहीं हो सकती। कहीं नोटों की गिनती और बंटवारे हैं और कहीं वजारतों का व्यापार है। वो क्या जाने के लताफत क्या चीज़ है, इनका तो दीन पैसा, ईमान पैसा और मतलूब पैसा है। अब ज़रा गरीबों की बस्ती में झांकिए, रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बीमारों की अयादत करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, खुलूस का पैकर होते हैं। जबकि अमीर लोग तो ये तक नहीं जानते कि इनके पड़ोसी कौन हैं। महीनों तक एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। यकीन जानिए साथियों, हमारे मजहब और तहजीब की सच्ची तस्वीर तो गरीबों की बस्तियां हैं। बेशक आप किसी ईद या कौमी और मुल्की त्यौहार के मौका पर इनके जोश व खरोश का मुशाहिदा कर लें। अज़्म आज़ादी का ये जोशे जनून, अज़्म आज़ादी का ये जोशे जनून, एक नए दौर का आगाज़ किया जाता है। मुफलिस की झोंपड़ी में गुर्बत के बावजूद बेमाया ज़िंदगी को भी हंस के जिया जाता है। शुक्रिया। शामिर
ज़मान है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। नाम से अल्लाह का करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। जनाब सदर, मोहतरम साथिया कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा मौज़े गुफ्तगू है हम जिंदा कौम हैं। इस्लामी तारीख़ में सिर्फ 2 ही रियासतें हैं जो नज़रियाती और मजहबी बुनियाद पर वजूद में आएँ, एक मदीना मुनव्वरा और दूसरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जनाब सदर, हम जिंदा कौम हैं, हम कि जिनकी दास्तान उरूज मौरख लिखता है कि ये एक कहानी है एक ऐसी कौम की जिसने संगलाग ज़मीनों में गुलहाए रंगा रंग खूने जिगर से आबियारी की। हमतन गोश रहें कि किस्सा तवील है मगर बयान दलील है। हम इब्राहीम बने तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, हम मूसा बने तो फिरौन हुआ गर्क दरियाए नील में, हम ईसा बने तो सूली पे चढ़े काबे की 360 बुतों को पाश पाश कर दिया। हमने नीचे पर चढ़कर हुसैनियत को सुरखरू किया कि हमने कैसरो और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर, ये बात सिर्फ यही नहीं, फिर हमने इकबाल बनकर दीवाने के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर कर दिखाया और जिना बनकर मजजूब की बड़ को हकीकत का रूप दिया। धरती माँ ने जब भी खिराज मांगा तो हम दुश्मन के टैंकों के सामने लेट गए। एमएम आलिम बने तो 1 मिनट में दुश्मन के 5 त्यारे मार गिराए। मेजर अजीज भट्टी बनकर दुश्मन को नाको चने चबाए। हम कारगिल के कर्नल शेर खान, कर्नल मकबूल, अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हकीम मोहम्मद सईद और अरफा करीम बने। हमने बैट बल्ले को छोड़कर शौकत खानम बनाया। 1947 की लड़खड़ाती और नुज़ैदा ममलिकत को एटमी ताकत बना डाला। हम शायरी में शिराजी बने तो नगमागरी में फिरदौसी ठहरे। हम ख़याम हैं निशापुरी के और रूमी के, हम मसनवी हैं। हम सोज बने तो बुल्ले शाह, हम साज बने तो वारिस शाह, हम नगमा बने तो शाह लतीफ़, हम रक्स बने, हम वज बने, हम सचल सरमस्त बने। जनाब सदर, हम वो कौम हैं जिसने GF-17 थंडर तैयार किया, वो कौम जो आखिरी गोली और आखिरी सिपाही बनने का अज़्म रखती है, वो कौम जिसके नौने हाल दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का इरादा करके अमन का नारा बुलंद करती है। और अब तो दुश्मन भी ये बात तस्लीम कर चुका है। द टी इज़ फैंटास्टिक। जनाब सदर, एक कौम बनने के लिए एक कायद और एक नज़रिए की ज़रूरत है। यहाँ अलग अलग कायद और अलग अलग नज़रिए नहीं चाहिए। दुआ कीजिए कि हमें ऐसे रिजान मुयस्सर हों जिनकी निगाह बुलंद हो, सर सैयद जैसी, सुखन दिल नवाज हो, इकबाल जैसा और पुरसोज़ी जान हो, मेरे कायद जैसी। आप सबकी समातों का शुक्रिया। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती रहती हैं उनकी तकदीरें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रोहान और मैं जमात शशमे का तालिबे इल्म हूँ। सुर्ख फूल पे शहर के पेड़ों पे आ गए, सुर्ख फूल पे शहर के पेड़ों पे आ गए, रूहों पर जितने जख्म थे वो चेहरों पे आ गए। अब देखना किस तरह उड़ती हैं किरचियाँ, पत्थर से लोग आईना खानों में आ गए। सदर वकार और सामीन गिरामी, आज के मौजूद दीवान में पेश करदा किरदार हम जिंदा कौम हैं और मैं इसकी मुखालफत करूँगा। मेरी मुखालफत जिद ब जिद, ये जवाब है जवाब नहीं, बल्कि खुले दिलो दिमाग से सुनने वालों को मेरे दावे का सबूत मिल जाएगा। जनाब सर, किसी भी कौम की पहचान इसका माजी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माजी की तमन्ना के इसका मेन सबूत है, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि एक शानदार माजी की हामिल कौम का हाल ज़वाल है। बहसियत कौम ये गलती हमसे हुई है कि हमने अपने इस्लाम के कारनामों को भुला दिया। वो कौम जिसने मशरिक़ और मग़रिब में इस्लाम का बोलबाला किया, आज वही कौम इस्लाम से बेजार और अमली तौर पर मज़हब से दूर हो रहे हैं। इंसानियत दम तोड़ रही है। वो इंसान जो कल तक एक दूसरे के हमदर्द थे, आज वही इंसान का गला काटता है। धोखा और फेब आम हो रहा है। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ कारकर्दगी के कौशल मानना पड़ गया हो। आप बताएं, कोई है ऐसा शोबा? नहीं।
اور جہاں تو بدقسمتی سب ہی امام ہے، مقتدی تو کوئی بھی نہیں۔ ہم سب دوسروں پر تنقید کرتے ہیں مگر اپنی اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہم نے ہر روح کے مقابل آئینہ رکھا مگر ایک خود کو آئینے کی آنکھ سے دیکھا نہ گیا۔ جناب صدر، مجھے بات انتہائی افسوس سے کہنے پڑ رہی ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں، بلکہ ہر شخص دوسرے کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ضرورت تو حقیقت سے آنکھیں چار کرنے میں ہے۔ آج میرے پاس گفتار کا حسن ہے، کردار کی خوبی نہیں۔ جمود اور بے عملی نے ہمارے دلوں سے ولولہ، نگاہوں سے انداز افاقی اور بازوؤں سے قوت خبر شکن چھین لی ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ آج ہم ذلت و زوال سے دوچار ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ لیجیے، بدنظمی اپنے کمال پر نظر آئے گی، رشوت، فریب اور جھوٹ اور بے ایمانی عروج پر ہے، محنت بے ثمر اور ماں کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ جب ڈگری لینے والا ڈگری ہاتھ میں لیے مارا پھرتا ہے، باپ بھوک سے بلکتے بچوں کو بیچنے سرعام نکل آتا ہے۔ ہوا کچھ اور ہی عالم میں چلتی جاتی ہے، ہنر کے عیب کی صورت بدلتی جاتی ہے۔ عجب نہیں کہ رہے نیک و بد میں کچھ نا تمیز، کہ جو بدی ہے وہ سانچے میں ڈھلی جاتی ہے۔ جناب صدر، ہمارے معاشرے کا ہر رخ داغدار، ہر انداز افسوسناک ہے۔ ہمارا تعلق ایسی عظیم الشان قوم سے ہے جس نے ایک دور کی تاریخ کو ہلایا اور حالات کا رخ بدلا۔ جب اصلاح ذات کا جذبہ اور دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا تو وہ قوم تاریخ کے لیے وجہ فخر بن جائے گی۔ جناب صدر، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ہر وقت ہر لحظہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو روبرو رکھیں۔ یہی وہ روشنی ہے جسے ہم تاب و تاب لے کر زندگی کی ظلمتوں کو نور عطا کر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار اب بھی۔ شکریہ۔ اپنی پسندیدہ ٹیم کو کامنٹ کے ذریعے ووٹ کریں۔ شکریہ۔